Namaskaram and welcome to this program of conversations. It is a unique program which tries to bring together writers of all Indian languages, all Indian non-Telugu writers on one platform so that we know what the writers of other languages are doing in their own language, so that all of us can come on one platform and discuss our literature. So today we have Sri Anant Panduranga Deshpandeji, who is 82-year-old, a senior most writer of Marathi language. He is basically electrical and mechanical engineer, and he worked for over 35 years. Then he is the honorary secretary of Marathi Vignan Parishad for the past 50 years, and he has written over 84 books. So almost, compared with his age, a book a year. So, and he's 2 books forward. And he has around 1,300 articles, unimaginable, and delivered over 1,900 speeches and 273 talks on radio and about 75 programs on TV. And he has won many awards, and he has translated about 25 books and edited Encyclopedia on Science and Technology and Scientists of past 200 years from Maharashtra. I would love to read that book because this seems to be a very interesting book. I thought Maharashtrians are in the forefront of fighting for independence in the literature, in the creation of abhangs and such movements, bhakti movement. But here I find for the past 200 years, science and technology and scientists of past 200 years of Maharashtra. So I would very much like to know about this book in detail from him. And he has selected articles on science between 1832 to 1915, 2 volumes, 1930 to 1950, for Vignan Prasar, biographies of Dr. Anil Kakodkar, Dr. Vasant Govarikar, Dr. Madhav Chitale, Dr. Madhav Gadgil, Dr. R.A. Mashelkar, and agricultural scientist Dr. A.B. Joshi, and so on. Today, I am really feeling proud to bring him to the YouTube channel to you, and also feeling honored to have him on my program. Namaskar and welcome Anant Panduranga Deshpandeji. It is a privilege to have you on our program, and हम आपसे बहुत बहुत जानना चाहते हैं. हमको ये पता हो गया है कि 2 घंटा 3 घंटा नहीं चलेगा, नहीं बस नहीं होगा, तो आप इत्मीनान से बात कीजिए. जितना प्रोग्राम हो सके उतना हम करेंगे, ताकि अपने दर्शकों को, जिज्ञासुओं को जो जानना चाहते हैं, पूरा ज्ञान जितना हो सके उतना हम दे सकें. सो नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन. नाउ बिफोर हम आपके रचनाओं के बारे में, राइटिंग्स के बारे में बात करना शुरू किए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन कैसे गुजरा, पढ़ाई कैसे हुई, उस जमाने का माहौल कैसा था कि हम इमेजिन भी कर नहीं सकते. जो बुक में पढ़े तो फिर मिथोलॉजी जैसा लगता है. सो थोड़ा हमको विपुल विस्तार से बता दीजिए. हिंदी में बात करो या अंग्रेजी में बात करो? जो भी आप चाहे, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो बात कीजिए. अगर दोनों मिला के बात करें तो भी ठीक है, जैसा मैं कर रहा हूँ. ओके. मेरा जन्म 15 दिसंबर 1942 में पूना में हुआ. अच्छा. और मेरी स्कूल की पढ़ाई भी पूना में हुई. पूना की एक बड़ी मशहूर स्कूल नूतन मराठी विद्यालय, इस स्कूल पे मैं पढ़ा. मेरी प्राथमिक शिक्षा आदर्श विद्यालय नाम के स्कूल में 1ली से 3री. उस वक्त आज कल जैसा नर्सरी केजी होता रहता है, उस वक्त 1ली के पहले और एक कक्षा होती थी, वो भी मैंने पास की. और फिर 1ली से 3री आदर्श विद्यालय में था. फिर 4थी कक्षा के वास्ते नूतन मराठी विद्यालय के प्राथमिक स्कूल में मैं गया. और वहाँ से 5वीं से 11वीं थी उस वक्त, तो 5वीं से 11वीं मैं नूतन मराठी विद्यालय में पढ़ा. ये नूतन मराठी विद्यालय में 5वीं से 11वीं के हर एक कक्षा के वास्ते 8 डिविजन्स थे, ABCDEFGH. और मैं आमतौर पे बी डिवीजन का लड़का था. ए डिवीजन में जाने का इतना होशियारी मेरे पास नहीं थी उस वक्त. और स्कूल में कुल मिला के 3000 छात्र पढ़ते थे. ये खाली छात्रों की स्कूल थी, यहाँ छात्री नहीं थी.
और हमारे स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते थे, ये शिक्षक भी विद्वान थे। स्कूल के करीबन 10 से 12 शिक्षक जिन्होंने उस वक्त स्कूल में होते हुए पीएचडी की थी, और उसके बाद में वो एसपी कॉलेज करके, यही स्कूल का कॉलेज था, शिक्षण प्रसारक मंडली, जिसके स्कूल्स थे और जिसके कॉलेजेस भी थे। तो उसके एसपी कॉलेज नाम का कॉलेज पूना में था, उसमें चले गए थे। तो ऐसे विद्वान प्राध्यापक उस वक्त स्कूल में थे। अभी एक बात ये थी कि आज जैसा इसका कोई पैसे के पीछे दौड़ने वाले शिक्षक नहीं थे। और स्कूल 5 बजे खत्म होता था, 11 से 5 बजे। और 5 बजने के बाद काफी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जैसी हिंदी की परीक्षा है, संस्कृत की परीक्षा है, अंग्रेजी की परीक्षा है। तो इस परीक्षा के वास्ते कोचिंग होता था, उसके वास्ते कोई अलग फी नहीं थी। और एग्जामिनेशन तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ करके पूना में है, उनकी अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षाएं थी, हिंदी की परीक्षाएं, और राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभा, जो मेरे ख्याल से पूरे देश में काम करती है, उनकी थी। तो ऐसे एग्जामिनेशंस के बारे में भी मैंने कोशिश की, और मैं उसमें उत्तीर्ण होता रहा। इसके अलावा सुबह हमारी पीटी थी, फिजिकल ट्रेनिंग, और उसके वास्ते हम लोग एसपी कॉलेज में बड़ा ग्राउंड था। आज के हिसाब से देखा जाए तो करीबन 2-3 लाख लोग बैठ सकते हैं। अच्छा। इतना बड़ा ग्राउंड आज के दिन में भी उधर है। तो उधर सुबह हम पीटी के वास्ते जाते थे। और पूना एक ऐसी सिटी है जहाँ गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी रहती है। उस दिनों के हिसाब से 38, 39, आज के जैसा 40 पार नहीं किया था। और सर्दी के दिनों में काफी सर्दी होती थी। तो सर्दी के दिनों में भी हाथ कंप पाते थे, और हम लोग पीटी में जाते थे। उस वक्त की एक याद मुझे है, एसपी कॉलेज में एक स्विमिंग पूल बनाने का प्रोजेक्ट था, और उसके वास्ते खुदाई करनी होती थी। तो ये खुदाई सब बच्चे लोगों ने, स्कूल के या कॉलेज के, अपनी मेहनत लगा के खुदाई की थी। और हमारी पीटी खत्म होने के बाद हम एक 10 मिनट या 15 मिनट खुदाई करते थे, और उसमें कोई कमी महसूस नहीं होती थी। मुझे याद है एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हाफ चड्डी पहन के, बनियान पहन के खुद आके खुदाई में शामिल हो जाते थे। उस वक्त की एक बड़ी मनोरंजक बात है कि एक कोई आदमी प्रिंसिपल भिड़े साहब को मिलने आया था। उसको बोला कि आप जाओ फलाने जगह, वो खुदाई चालू है, वहाँ साहब है। तो वो वहाँ चले आए और पूछा, हमें प्रिंसिपल भिड़े से बात करना है। तो बोला ठीक है चलो। और वो जो खुदाई करने का इंस्ट्रूमेंट था, कुदर बोलते उसमें मराठी में, तो वो अपने कंधे पे डाला और उनके साथ चलते गए और प्रिंसिपल के ऑफिस तक उनको लेके गए। वो कुदर एक कोने में रख दिया, खुद प्रिंसिपल की कुर्सी में बैठ गए, और फिर बोले, बताइए अब आप प्रिंसिपल भिड़े से बात कर रहे हैं। सो तो एक क्षमा कीजिए, थोड़ा अपना कैमरा एडजस्ट कीजिए ताकि ये भाग आपका कट हो जा रहा है। कट हो रहा है। हाँ। अब अभी ठीक है। अभी तो ठीक है, लेकिन जब आप बात करने से पहले थोड़ा झुक रहे हैं तो अच्छा ये जी। इसीलिए कैमरा को थोड़ा ऐसा एंगल आप अभी देखो। ऊपर ऊपर ऐसा ऊपर कीजिए। हाँ, बस बस आप ठीक है, एक्सलेंट है। और आप उस समय की माहौल कैसा था, लोग कैसे थे, और आप स्कूल जा रहे हैं, आपके घर में वातावरण कैसे थे? सब सब मैं बताता हूँ। पहला स्कूल का चैप्टर चालू किया तो वो पूरा कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, तो स्कूल में, हमारे स्कूल में, या आमतौर पे सभी स्कूलों में दिसंबर या जनवरी में एक स्नेह सम्मेलन होता है।
और उस स्नेह सम्मेलन में कोई ड्रामा बच्चे लोग ही बनाते थे, कोई टीचर ड्रामा लिखते थे और वो ड्रामा हो जाता था। तो ऐसे एक ड्रामा में मैंने हिस्सा लिया था। दूसरी बात ये थी कि अपनी जो जो भी हॉबीज है, उस हॉबी का प्रदर्शन करने का मौका भी होता था। तो मैं पोस्टल स्टैम्प्स इकट्ठा करता था और उसका भी प्रदर्शनी मैंने उस वक्त किया था। गणपति उत्सव होता था, तो हर एक क्लास का गणपति अलग होता था। हाँ। और मुझे याद है कि हमारे क्लास में जब भी गणपति 8वीं कक्षा में हुआ था, हमारे जो प्रिंसिपल दबड़ घाव करके करीबन 6.25 फुट ऊंचाई थी, और वो आए थे और मेरी माँ भी आई थी देखने को। तो माँ के साथ उन्होंने बात की थी। फिर हमारे पिताजी के साथ प्रिंसिपल की पहचान थी, और दोनों ये राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभा के हिंदी एग्जामिनेशन के एग्जामिनर्स ऐसे होते थे। तो ये स्कूल में काफी चीजें हमने सीखी। जैसा कि हरिनारायण आप्टे करके एक मशहूर नॉवेलिस्ट थे, तो उनकी जो जो भी किताबें थी, वो किताबें पढ़कर उसकी एग्जामिनेशन होती थी, तो उसमें हमने हिस्सा लिया था। फिर अच्छा हैंडराइटिंग होना चाहिए करके उसकी एक कंपटीशन होती थी, उसमें भी करते थे। तीसरी बात ये कि ये गर्मियों के दिनों में जो 1.5 महीना 2 महीना छुट्टी रहती थी, तो हमारे यहाँ करीबन 50 से तरीके के हॉबी क्लासेस चलते थे। दिनों के अनुसार स्टोव कैसा लगाना है, पंप करके, या सफाई करनी है स्टोव की, साइकिल सीखना है, तैरना सीखना है, राइफल का उड़ाना है। तो ये सब, और उस दिनों की फीस कितनी थी, करीबन हाफ ए रुपी, 8 आना बोलते थे, हाफ ए रुपी या क्वार्टर ऑफ ए रुपी। लेकिन 4 आना। हाँ, लेकिन मेरे घर में आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं एक भी क्लास ज्वाइन नहीं कर सका। लेकिन फिर भी अलग तरीके से मैं साइकिल चलाना सीखा था, ये स्टोव पंप करना सीखा था। ये सब चीजें घर में हम बनाते थे, करते थे। तो ये स्कूल की और एक खासियत ये थी कि 1936 से 1942 हमारे इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, N.G. नारलकर, तो ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे पहले एसपी कॉलेज में, और उनको 6 बरस के वास्ते स्कूल में प्रिंसिपल करके भेजा था। तो पहले बरस ये जो स्नेह सम्मेलन था, उसके वास्ते उस वक्त का 1 आना, 1/16 ऑफ ए रुपी, ये कुछ प्रवेश फी थी। और जिन लोगों ने प्रवेश फी भरी है, उनको प्रवेश का एक कोई कार्ड मिलता था, वो उन बच्चे लोगों को अंदर ले लेते थे। तो हमारे स्कूल में बीच में, बिल्डिंग के बीच में जगह काफी थी, जहाँ 5-6 हजार बच्चे लोग बैठ सकते थे। और उसके प्रवेश द्वार पे एक पार्टीशन रखा था, और जिसके हाथ में पास है, पैसा भरा है, वो अंदर जाता था, बाकी सब लोग बाहर बच्चे खड़े होते थे। तो ये प्रिंसिपल साहब उधर खड़े थे, और जिन बच्चे लोगों, ये बच्चे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे न जाने, अपने को भी प्रवेश मिलेगा भले पैसा नहीं भरा है। लेकिन इन बच्चे लोगों के मुंह पे जो भावना थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते, और हमारे क्लास के बाकी छात्र जा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर जो टीचर इसका इंचार्ज बनाया था, उनको और बाकी सब टीचर लोगों की एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में उन्होंने बताया कि इस वक्त हम अलग तरीके का एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग ऐसा रहेगा कि सब बच्चे लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, और जो पैसा देना है, कंट्रीब्यूशन, वो ऐच्छिक रहेगा, जिसको जितना देना है उतना दो। तो बाकी टीचर लोग बोले, आप ये क्या कर रहे हैं, बड़ा धोखा है इसमें, पैसा कम जमा हो जाएगा और ये सम्मेलन घाटे में जाएगा। तो अपनी जो मंडली है, एसपी मंडली, शिक्षण प्रसारक मंडली,
हम्म, आपको तकलीफ दे देंगे। तो बोले चिंता मत करो, मेरे वाइफ के एक शेर के 1 किलो के गहने हैं हम्म, सोने के, हम्म, वो आज ही लाके मैंने अकाउंटेंट के पास जमा किए हैं। वाह वाह। हम्म, अगर कोई कम पड़ेगा तो उसमें से ले लेने का है। हम्म, लेकिन नारलकर साहब इतने में रुकने वाले नहीं थे। हम्म, उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लगाया उन्होंने, और उस बोर्ड में पांचवी छठवीं सातवीं ऐसा 11वीं तक वर्टिकल फर्स्ट कॉलम, सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में ए डिवीजन बी डिवीजन सी डिवीजन ऐसा करके, हम्म, पहली छुट्टी डिब्बा खाने की होती थी दोपहर को 2:30 से 3 बजे तक। तो उसके पहले एक शिक्षक को काम दिया था कि पिछले दिन हर एक क्लास की जितनी भी कंट्रीब्यूशन जमा हुए उसकी रकम उधर लिख ली। हम्म, तो सब बच्चे लोग उधर खड़े होते थे और देखते थे कि अपने क्लास का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ हम्म, और अपने कक्षा के बाकी लोगों के बाकी डिवीजन का कितना हुआ। ये कंपटीशन चालू हो गया। हम्म, और इस कंपटीशन में अपना क्लास पीछे जा रहा है, तो अपने क्लास का जो भी अमीर लड़का है उसको रिक्वेस्ट करे कि भाई और पैसा लेके आओ अपने पिताजी से। और ऐसा सब जगह कंपटीशन बढ़ गया, सम्मेलन हो गया। सम्मेलन के बाद टीचर लोगों की मीटिंग हो गई। ये सम्मेलन घाटे में नहीं मुनाफे में हुआ। हम्म। और फिर उन्होंने पूछा, क्या मेरे वाइफ के गहने में लेके जा सकता हूँ? साइकोलॉजी उपयोग करा। हाँ, और ये जो 1937 से उन्होंने चालू किया, हम्म, आज 2025 90 साल होने को आए, ये सिस्टम चालू है। वाह, अभी भी चालू है। हाँ, हम्म, और ऐसे काफी सिस्टम्स में उनके बारे में बोलूँ तो आधा घंटा लगेगा, इतनी नई नई सिस्टम्स हम्म, उन्होंने चालू की। और एजुकेशन इंस्पेक्टर घाटे करके थे, जो हम्म, खुद साहित्यिक थे, हम्म, साहित्यकार थे। तो हम्म, वो आते थे स्कूल में। ये 1937 38 39 की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम्म, घाटे साहब बोलते थे कि नूतन पराठी में मैं आता हूँ तो स्कूल में क्या कमियां है ये बताने को नहीं आता। हम्म, नारलकर साहब ने क्या नया सिस्टम किया है वो हम्म, देखने को आता हूँ, वो सीखता हूँ और बाकी स्कूल को बताता हूँ कि ऐसा करो, ये देखो ये नूतन मराठी ने किया है। हम्म। और फिर वो बोलते थे ऑल रोड्स इन जून लीड टू नूतन मराठी विद्यालय। और दिस क्या वाज क्या सिस्टम बना है, एक थोड़ा अच्छा बता दीजिए, इम्पोर्टेंट जो आप समझे। इम्पोर्टेंट थी। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। हाँ हाँ, तो हम्म, ये स्कूल की बात हुई। अभी मेरे पिताजी जो थे वो हम्म, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, वैद्य थे। हम्म, और उन्होंने गुरुकुल पद्धति से आयुर्वेद सीखा था 1923 से 1928 तक मुंबई में। हम्म, और उसका एग्जामिनेशन दिल्ली बोर्ड से होता था। हम्म, और ये आयुर्वेदाचार्य जो उपाधि थी, हम्म, ये उपाधि एमए समकक्ष थी। हम्म। उनमें वो पहले आए थे। तो उस जमाने में आयुर्वेद भी कॉलेज में सिखाते थे। हाँ, नहीं कॉलेज में नहीं, ये हम्म, गुरुकुल पद्धति मतलब एक जगह बाकी वही लोग हम्म, आते थे और वो सिखाते थे एक एक सब्जेक्ट। ओ, जैसा कि एनाटॉमी है या फार्माकोलॉजी है, हम्म, जिसको द्रव्य गुण रसशास्त्र बोलते हैं। तो हम्म, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स वो सिखाते थे। और उनके खुद के डिस्पेंसरी में हम्म, उनका प्रैक्टिकल होता था। हम्म, पेशेंट को कैसा चेक करना है, उसको क्या सवाल पूछना है, हम्म, उसको दवा कैसा देना है, हम्म, उसको और ये मत खाओ वो खाओ, ये हम्म, एक्सरसाइज करो, ये कैसा बताना है। हम्म, ये सब सीखते थे उनके दवाखाने में डिस्पेंसरी में जाके। हम्म, अभी उनकी एक बात ऐसी, 1933 में हम्म, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम्म, एक सेमिनार था। हम्म, सेमिनार का टाइटल था वात, कफ और पित्त। हम्म, ये तीन जो दोष बोलते हैं अपने शरीर में रहते हैं। हम्म, और उसमें से कफ अगर ज्यादा है तो बोलते हैं आपकी जो तबीयत है वो कफ प्रवृत्ति की है।
मतलब कफ ज्यादा है, ज्यादा है। तो उसके ऊपर थी। और उसके वास्ते संस्कृत में सेमिनार चालू था। हम्म। तो मेरे पिताजी और उनके गुरु हम्म। लेकर नाम के अमरावती में रहते थे, विदर्भ में। हम्म। वो भी उसमें हिस्सा लेने को आए थे। और मेरे पिताजी ने संस्कृत में इतना अच्छा डिस्कशन किया। हम्म। तो मैं भूल गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे, महात्मा गांधी जी के शिष्य थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मालवीय जी खुद बैठ के सुन रहे थे। हम्म। मालवीय जी को अच्छा लगा, मेरे पिताजी के पीठ के ऊपर उन्होंने थपथपाया और बोला, बहुत अच्छा काम किया आपने आज। हम्म। हम्म। ये बात थी। और मेरे पिताजी खाली डिस्पेंसरी चलाने वाले नहीं थे, तो हम्म। उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, उसके ऊपर भाषण देते थे। वो हिंदी में भाषण देते थे, संस्कृत में एक एक घंटा बात कर सकते थे, अंग्रेजी में बात करते थे। हम्म। उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते थे। हम्म। तो ये जो आज आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि मैंने इतने भाषण दिए, इतने आर्टिकल्स लिखे हैं, हम्म। ये सब देन मेरे पिताजी के। अच्छा। हम्म। और इसमें महाराष्ट्र में जो एक वैद्य सम्मेलन होता था, हम्म। पूरे स्टेट का अखिल महाराष्ट्र वैद्य सम्मेलन, हम्म। 1955 में भुसावल में जो 10वां सम्मेलन हुआ, उस हम्म। सम्मेलन के वो अध्यक्ष रहे। हम्म। और उसके बाद में उन्होंने जगह जगह पे जाके आयुर्वेद का प्रचार किया। और हम्म। उस प्रचार के वास्ते जो धूपापेश्वर इंडस्ट्री है, दवा बनाने वाली, हम्म। उसके जो मालिक थे पुरानी करके, हम्म। वो मेरे पिताजी के दोस्त थे। वो खुद वैद्य थे, लेकिन हम्म। उनको लिखने को नहीं जमता था। तो हम्म। मेरे पिताजी से बोलते थे, मुझे इस विषय पर आर्टिकल लिख के दे दो, या इस विषय पर भाषण लिख के दो, मैं पढ़ूंगा वो। तो हम्म। ये भुसावल सम्मेलन के बाद उन्होंने 1955 में अपनी कार इनको हम्म। दी थी, और पूरे कोकण एरिया में जाके इन्होंने हम्म। आयुर्वेद का प्रचार किया था। हम्म। लेकिन आप बोले तो इतना अच्छा लग रहा है, फिर आजकल आयुर्वेद से कुछ नहीं होगा या एलोपैथी ही अच्छा है और बोलते हैं, और जब आयुर्वेद सिखाने के लिए जाते हैं तो हम पीछे जा रहे हैं, ये हाँ, कुछ जागती कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। ये भावजाल कैसे आया? मैं बता देता हूँ। इसके पहले मैं ये चैप्टर पूरा कर देता हूँ मेरे पिताजी के बारे में। हम्म। तो पिताजी उनको डिस्पेंसरी में लगने वाले सब दवा हम्म। घर में बनाते थे। हम्म। और इसमें पाउडर होती थी, इसमें लिक्विड्स होते थे, हम्म। इसमें आपको ताज्जुब लगेगा, मर्क्यूरी बनाते थे वो। हम्म। तो मर्क्यूरी में दो मटका लेने का, और उसका जो मुंह है वो बंद करने का, अंदर उसमें पीबी, मैं भूल गया, उसको हिंगुड़ बोलते हैं, मराठी में हिंगुड़ बोलते हैं। हम्म। तो वो अंदर डालने का, मुंह बंद करने का, और फिर वो चूल्हे के ऊपर रखने का। 24 घंटा चूल्हा चालू होता था। तो हम्म। हिंगुर से पारा लिबरेट होके, पारा बोलते मर्क्यूरी को, वो हम्म। लिबरेट होके ऊपर के मटके के अंदर में चिपक जाता था। हम्म। और वो गर्मी से नीचे नहीं गिरना चाहिए करके, ऊपर के मटके के ऊपर बाहर से हम्म। पीला कपड़ा डालने का, हम्म। तो ठंडा रखने के वास्ते। ठंडा रखने का। और हम्म। ये करने के वास्ते वो पूना के टिळक आयुर्वेद महाविद्यालय में ये हम्म। फार्माकोलॉजी, द्रव्य गुण रसशास्त्र सिखाते थे। हम्म। तो वहाँ के दो दो बच्चे लोगों को एक एक शिफ्ट देके प्रैक्टिकल होता था हमारे घर में। घर और एक लेबोरेटरी बन गया। हाँ, और फिर 24 घंटे के बाद ये चूल्हा बंद करके ठंडा होने के बाद निकाल के, वो हम्म। जो मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी धोती के कपड़े में फिल्टर हो जाता था। हम्म। तो जो बाकी जला हुआ जो पार्ट था काला वाला, वो मर्क्यूरी में मिक्स नहीं होना चाहिए। हम्म। उसके वास्ते च्यवनप्राश बनाते थे घर में। हम्म। 50-50 किलो या 100 किलो च्यवनप्राश एक वक्त बनता था। हम्म। फिर ये आमली का मोरावड़ा बनता था। हम्म। आ,
फिर ऐसे काफी दवाएं वो बनाते थे, और जो लिक्विड बनाते थे उसके 25-25 किलो के बड़े वाले ऐसे बर्तन चाइना क्ले के होते थे, हम्म और वो 6-6 महीना एक जगह रख के फर्मेंट होने के बाद वापरते थे। हम्म आयुर्वेदिक दवा है, ये फर्मेंट होना वो ज्यादा गुणकारी हो जाता है, हम्म ऐसा वो करते थे। अच्छा, ये उनका एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये था कि वो क्लासिकल म्यूजिक सीखे थे। ओह अब्दुल करीम खान साहब जो किराना घराने के, हम्म इसके आगे में भीमसेन जोशी बड़े गायक हो गए, हम्म तो अब्दुल करीम खान और उनके पुत्र सुरेश बाबू माने, तो हम्म सुरेश बाबू माने के साथ इन्होंने गाना सीखा था। हम्म और हमारे घर में गुरु पूर्णिमा हम्म और दिवाली में धनत्रयोदशी, हम्म ये 2 दिन में गाना होता था, हम्म और 100 एक लोगों को इनवाइट किया जाता था सुनने के वास्ते। हम्म इतना बड़ा हॉल हमारे घर में था, जहाँ हम्म 100 लोग बैठ सकते थे। हम्म अब्दुल करीम खान साहब आके गाए थे, जिसमें रामकृष्ण बुआ वजह करके एक बड़े गायक थे, वो आके गाए थे। हम्म मीराबाई बड़देकर आके गाई थी। तो ये बहुत बड़े गायक सुरेश बाबू माने तो अक्सर आते थे। हम्म और आपको ताज्जुब लगेगा कि अब्दुल करीम खान साहब के एक शिष्य सवाई गंधर्व, हाँ हाँ, हम्म तो सवाई गंधर्व इनकी 1940 की बात आप सोचिए, जब भी ये जो गायक लोग थे गवई, हम्म को समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी। हम्म इनको परास के पास जाके गाने वाले प्रॉस्टिट्यूट हम्म ऐसा समझ जाता था। हम्म जी को ये सब लोग मालूम थे। अलग अलग घराने के जो गायक थे, हम्म आगरा घराना होने दो, ग्वालियर घराना होने दो, जयपुर होने दो, किराना घराना होने दो, भिंडी बाजार घराना होने दो, ये सब घराने के गायक लोग मालूम थे। हम्म ये अच्छे बर्ताव करने वाले इनको क्यों ऐसा बदनाम करते हैं। हम्म इसके वास्ते उन्होंने क्या किया, 1940 में हारमोनियम प्लेयर गोविंदराव टेम्बे, हम्म इन इनको 60 साल पूरे हो गए, हम्म तो इनका डायमंड जुबिली उन्होंने मनाया। पूर्तकोटि शंकराचार्य को अध्यक्ष करके बुलाया, वाह हम्म और 3 दिन गाने का प्रोग्राम किया। एक किताब एडिट किया, गोविंद गुण गौरव। हम्म फिर 1946 में सवाई गंधर्व को 60 साल पूरे हो गए, हम्म उनका ऐसा ही प्रोग्राम बनाया, सवाई गंधर्व नाम का किताब एडिट किया। हम्म फिर एक बड़े साहित्यकार केलकर करके थे, नरसिंह चिंतामण केलकर, चल कर अध्यक्ष करके बुलाया। 3 दिन गाने का प्रोग्राम हुआ। हम्म वक्त सवाई गंधर्व मेरे पिताजी को क्या बोले, ये भीमू अभी अच्छा गाता है, हम्म मतलब भीमसेन जोशी, हम्म तो एक 15 मिनट इसको दे दो। हम्म तो उनको दिया 15 मिनट गाने को, बड़े अच्छे गाए। मेरे हम्म पिताजी बोले, बड़े गणपति के पेट से छोटा गणपति बाहर आ रहा है। हम्म दूसरे दिन भीमसेन जोशी के पिताजी गुरुराव जोशी हम्म संस्कृत के अध्यापक थे स्कूल में, हम्म को मिले और बोले, ये भीमसेन अच्छा गाता है, आप लोग कर्नाटक में गदग में रहते हैं, हम्म तो उधर ये आगे नहीं आ सकता, इसको पुणे में या मुंबई में आने दो। हम्म तो बोले, हमारा इंतजाम नहीं है जिधर इसको रखे। तो बोले, मैं बता देता हूँ ना, वो मेरे घर में रहेगा। वाह हम्म तो घर में रहे नहीं, लेकिन भीमसेन जोशी और हम्म दूसरे गायक थे बसवराज राजगुरु, हम्म जो धारवाड़ में रहते थे। हम्म वो दोनों लोग हमारे घर में पूना में आके 3-3 महीना रहते थे। हम्म ऐसा बरस में 2 बार 3 बार आते थे, हम्म मेहनत करते थे। इसके बाद भीमसेन जोशी को पूना अच्छा लगा, वो हम्म पूना में सेटल हो गए। हम्म राजगुरु को अच्छा नहीं लगा, वो वापिस धारवाड़ में चले गए, हम्म लेकिन रिलेशन बनता रहा। हम्म तो ये भीमसेन जोशी का जो रिलेशन बन गया 1946-47 से लेके, तो हम्म उनका मृत्यु जो 2011 को हुआ, हम्म
वक्त तक मेरे पिताजी का निधन हो गया 1956 में। हम्म हमारे साथ, मैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, इनके साथ उनका रिश्ता बना रहा। हम्म आह, तो ये गाने का सिलसिला रहा। हम्म गाने में बातचीत होती थी, डिस्कशन होता था। और सवाई गंधर्व का निधन हो गया 1952 में। हम्म तो 10वें दिन उनके फोटो का अनावरण किया। हम्म हम्म तो अपने नागपुर से देशमुख करके एक संगीत के बड़े रसिक थे, हम्म को बुलाया, उनके हाथ से किया। सुरेश बाबू माने, हीराबाई बड़ौदेकर, भीमसेन जोशी, इन लोगों के गाने हो गए। हम्म और फिर मेरे पिताजी बोले ये इतने में रहने का नहीं है, हर एक बरस हम्म महफिल होनी चाहिए इनके नाम पे। हम्म और वो महफिल पूना में भीमसेन जोशी और मेरे चाचा डॉक्टर V.S. देशपांडे, हम्म इनका ब्याह सवाई गंधर्व के लड़की से हम्म मेरे पिताजी ने। हम्म तो वो दोनों ने 1953 से सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव पूना में चालू किया, जो हम्म आज 70 साल हो गए, अभी भी चालू है। आह, हम्म और वो महोत्सव में 15-15 हजार लोग आते हैं। हम्म तो वो पूना का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। हम्म तो ये सब संगीत की जो देन है, वो हम तो गाते नहीं थे लेकिन सुनते थे। तो हम तानसेन है, तानसेन नहीं है, कानसेन। कौन सा? फिर आपको उस जमाने की वो बाल गंधर्व या दीनानाथ मंगेशकर वो जानते हैं फिर आप? दीनानाथ जी को नहीं देखा, लेकिन वो तो गुजर गए। बाल गंधर्व को देखा। हम्म मास्टर कृष्णराव करके थे, उनके ही हम्म साथ जो गाना सीखे वो हमारे घर में आते थे। हम्म हमारे घर में काफी गायक और विद्वान लोग आते थे। और हम्म ये भीमसेन जोशी, वसंतराव देशपांडे, ये हम्म सब बच्चे थे उस वक्त, हम्म जो 20 साल के, 22 साल के, 30 साल के ऐसे होते थे। वो सब हमारे पिताजी को गुरु मानते थे ये सब चीजों में। हम्म तो ये सब लोगों को, गंगूबाई हानगल को हमने देखा, हम्म फिरोज दस्तूर को हमने देखा, हम्म संगमेश्वर गुरु को हमने देखा। और ये सवाई गंधर्व महोत्सव तो काफी साल, मैं 1964 में मुंबई में आया, लेकिन तब तक वो हर एक बरस जाता था। 3 दिन का वो महोत्सव पूरे रात भर होता था। हम्म और बाद में मुंबई से जाके कुछ कुछ मैं अटेंड करता था। लेकिन संगीत ही एक हमारे आनंद की बात हम्म पूरे लाइफ टाइम होती रही। हम्म। लेकिन उस समय एक्चुअली पॉलिटिकली देश में थोड़ा तनाव थी, तो देश विभाजन की वो चल रही थी। उसका प्रभाव कैसे था नहीं दोहराइए। उस समय 1942-47 ये समय में? हाँ, देश में थोड़ा तनाव थी कि देश विभाजन होने का है, और उसका देश असर तनाव कैसा? का मतलब स्वातंत्र्य मिलने के पहले हम्म ये सत्याग्रह होता था, मीटिंग होते थे। 1942 का चले जाओ मूवमेंट था महात्मा गांधी जी का। क्विट इंडिया। तो वो, मैं, मेरी पैदाइश तो 42 में टू है, में हुआ। मालूम है। लेकिन मुझे एक बात अच्छी याद है, 1948 में जब भी महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, हम्म अभी पूना में कर्फ्यू थी। हम्म और हम बच्चे लोग, हमारे घर में बाहर एक गैलरी थी, तो हम्म वहां कुछ बॉल खेलते थे। तो हम्म बॉल नीचे जाने के बाद सामने किधर पुलिस खड़ा होता था, चिल्लाता था, ए रास्ते पे मत आओ। हम्म हम 6 बरस के थे उस वक्त। फिर और एक प्रश्न मेरे मन में उभर आ रहा है कि आप हाँ, स्वतंत्र वीर सावरकर से मिले क्या? स्वातंत्र सावरकर की मैंने 1952 में एक मीटिंग पूना में अटेंड की। हम्म उन्होंने 1905 में नासिक में हम्म एक मंदिर में ओथ ली थी कि हम स्वातंत्र के वास्ते मरेंगे, हाँ, काम करेंगे। हम्म तो अभिनव भारत हम्म बोलते थे। हम्म और स्वातंत्र मिलने के बाद 5 बरस के बाद 1952 में उन्होंने वो मूवमेंट बंद करनी थी, हम्म जिसको अभिनव भारत की सांगता हम्म ऐसा टाइटल दिया था।
और वो पूना में जो अभी गणपति का एक बड़ा मशहूर मंदिर है, हम्म तो वहाँ बड़ा ग्राउंड था। उस ग्राउंड पे मीटिंग हुई थी, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोलवलकर गुरुजी आए थे, हम्म और ऐसे काफी बड़े लोग आए थे। वो मीटिंग मैंने अटेंड की थी, मैं 10 बरस का था। हम्म लेकिन ये सब पूना का पानी पिया है करके सब मीटिंग अटेंड करना, गाने का प्रोग्राम देखना, फोकट में जो है, पैसा नहीं था, हम्म ये सब हम करते थे। हमने काफी भाषण सुने, वसंत व्याख्यान माला चलती थी हम्म स्प्रिंग में, तो उधर काफी लोगों के भाषण सुने। और ये सावरकर को दूसरी बार पूना में एक भिकारदास मारुति करके मंदिर है, हम्म वहाँ आए थे। तो 4 फुट दूरी पे से मैंने उनको देखा होता। हम्म फिर तीसरी बार उनको जब ये 80 साल पूरे हो गए, हम्म एसपी कॉलेज के ग्राउंड पे हम्म का सम्मान हुआ। और वो सम्मान क्या, वासुदेव बळवंत गोगटे करके एक उस वक्त एडवोकेट और पूना के मेयर थे। हम्म ये वासुदेव बळवंत गोगटे को हडसन गोगटे बोलते थे। हम्म 1930 में हडसन कर का गवर्नर था, हम्म और ये पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के वाडिया लाइब्रेरी में आया थे। हम्म और रैंगलर महाजनी प्रिंसिपल थे फर्ग्यूसन कॉलेज के उस वक्त। हम्म और ये गोगटे उधर स्टडी करने का दिखावा करता था। हम्म जेब में पिस्तौल था, हम्म ये स्वतंत्र लड़ाई का एक उपांग था। तो जैसा ही हडसन अंदर आए, इन्होंने पिस्तौल चलाया। ओ हम्म लेकिन वो गोली लगी नहीं उनको, हम्म बाजू में गए। और प्रिंसिपल को तो जिम्मेदारी लेनी थी। हम्म तो महाजनी साहब हडसन को बोले, आई थिंक आई शुड अरेस्ट। हम्म उनको अरेस्ट किया, वो कारावास में थे। हम्म बाद में आए, उनका शिक्षा आगे पूरी हो गई। हम्म लेकिन हडसन कुछ अलग तरीके का आदमी था। हम्म वो उसकी पूरी जो टेन्योर था वो पूरा करके वापिस इंग्लैंड चला गया। हम्म 2 बरस के बाद उन्होंने एक लेटर लिखा रैंगलर महाजन को। ये रैंगलर थे, मैथमेटिशियन थे महाजन। हम्म तो लेटर था, हाउ इज द स्टडी ऑफ गोगटे, इज ही स्टडी वेल, हम्म is he in need of any money, हम्म I will send from here. हम्म So he was understanding that India wants a liberation, and for that those people are struggling. हम्म So nothing wrong into it. That was his opinion. ओ अच्छा वेरी गुड हाँ, हम्म तो ये गोगटे उस वक्त ऑर्गेनाइजर था सावरकर जी के 80 साल का हम्म समारोह था उसमें। हम्म तो सावरकर जी बात करने के वास्ते उठ गए। तभी हम्म पूछा कि आप अभी इस उम्र में खड़े होके बात करेंगे या बैठ के बात करेंगे। नहीं नहीं, बोले खड़े होके बात करेंगे। हम्म फिर सावरकर जी ने पहला ही जो शब्द बताया, बोला ये गोगटे ने मुझे पूछा, आपका जो ये जो मंच है, मंच, हम्म इसको कैसा डेकोरेट मैं करूं, हम्म तलवार तलवार लगा दूं, ढाल लगा दूं। बोला नहीं नहीं, अणुध्वम, Oh. एटम बम, जो मॉडर्न वेपनरी है वो लगा दो। So even at 80, he was thinking forward. यस, यस। Hmm. सावरकर जी अ, महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे 1938 में। Hmm. और उस वक्त उनका जो भाषण था, अध्यक्षीय भाषण, Hmm. was very important and gets wide publicity and all that। तो उन्होंने बोला कि आप जो कलम लेते हाथ में, Hmm. तोड़ो, और हाथ में बंदूक ले। Hmm. ये साहित्यकार लोगों को बोला वो। Hmm. Hmm. सावरकर जी का 1940 में एक सम्मान, Hmm. भारत के जो सोशलिस्ट पार्टी के लोग थे, Hmm. सेम जोशी थे, Hmm. नाना साहब गोरे थे, Hmm. बड़े लीडर थे पुणे के। Hmm. तो वो क्या बोलते थे उस समारोह में कि सावरकर जी, आज जो आपका सम्मान हम कर रहे हैं, Hmm. आपने 1905 में Hmm. फ्रांस के नजदीक का मार्सेलिस में Hmm.
समुंदर में जंप मारा, हम्म। उसके वास्ते कर रहे हैं। हम्म। सावरकर जी बोले 1940 का सावरकर आपको समझेगा 1980 में। करेक्ट। 80 में तो पूरा कोई समझ नहीं पा रहे उसको। सावरकर जी की सोच विचार की ये थी, हम्म। आगे आगे क्या सोचते थे उसके बारे में थे। हम्म। लेकिन 1947 में उनका खुद का झंडा था, उनका शिवाजी पार्क दादर में घर था, जिसको हम्म। सावरकर सदन बोलते थे। उस हम्म। झंडे के साथ उसने तिरंगा झंडा लहराया था। हम्म। और सावर जी का देहांत 1966 में हुआ। मैं मुंबई में था, मैं हम्म। गया था उनका अंतिम दर्शन लेने के वास्ते। हम्म। फिर फड़के जी हम्म। माइक लगा के भगवत गीता का 15वां अध्याय हम्म। वो वो गा रहे थे उस वक्त। हम्म। सुधीर फड़के जो म्यूजिक डायरेक्टर है। हाँ हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो 15वां अध्याय, हम्म। ऊर्ध्वमूल शाखम अश्वत्थम प्रहोरव्ययम छंदांसि यस्य परिणामे यस्तम वेद सवेदविद। ये हम्म। सब गा रहे थे उधर सुधीर फड़के जी। हम्म। तो ये सावरकर। लेकिन आपको अब ये जो हो रहा है वो हाँ देख के आपके मन में कैसे लगेगा? हम राजनीति पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हाँ अपनी भावनाओं का जिक्र करेंगे। सो अब जो हो रहा है उसको देखे तो आपको मन में कैसे, हमको तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उनको देखे हैं, उनके साथ गुजरे हैं, वो क्या है जानते हैं आप, आपको कैसा महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा है। एक बात का तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी आदमी हूँ, जिसने काफी बड़े बड़े लोग देखे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं एक विज्ञान सीखने वाला आदमी हूँ। तो उसमें जो हो गया उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करने के है। गतम न सोचते। पंडित लोग जो पुरानी बातें वो नहीं करते थे, आज क्या करना है। हमारे एक अध्यक्ष थे प्रभाकर देवधर, इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन के चेयरमैन होते थे। उनका खुद का इंडस्ट्री था। वो बोलते थे देश पांडे कल क्या हो गया चिंता मत करो, आज क्या करने का है। तो अभी होता रहता है ये, खाली भारत की हालत नहीं है, ये पूरे देश विदेशों में यही होता रहता है। देखो ट्रम्प जैसा आदमी क्या कर रहा है, रोजाना कुछ उसका निर्णय बदली होता है। हम लोग लकी है कि मोदी जैसा लीडरशिप अपने को मिला है, और आज भारत देश का नाम बड़ा हो गया। तो हम लकी है ऐसा ही सोचने का। और बाकी राजीव गांधी जैसे लोग आते रहेंगे, वो पुराने दिनों में भी थे। सो हम ये यहीं छोड़ देंगे फिर आपको। मुझे मैं आपसे एक बात पूछा जो आयुर्वेद के बारे में, हाँ, कैसा आयुर्वेद के बारे में। रॉन्ग इम्प्रेशन कैसे आया? अभी आयुर्वेद के बारे में क्या होता है कि आयुर्वेद में समझो मेरे पिताजी ने कुछ खोज कर ली हम्म। और कुछ उनका एक दवा बना दिया, और हम्म। जो बहुत लोगों को अच्छा लगा, उससे लोग ठीक हो गए। हम्म। लेकिन ये लिख के रखे बाकी अपने शिष्य प्रशिष्यों को बताना, हम्म। या बाकी जो वैद लोग हैं उनकी मीटिंग बुला के उनको बताना, हम्म। ये नहीं करते हैं, ओ। वो अपने पास रखते हैं। हम्म। उसके वास्ते ये प्रॉब्लम होता है। मेरे पिताजी के बारे में और एक बात बताना मैं भूल गया। हम्म। वो खुद साइंटिस्ट थे। हम्म। उन्होंने क्या किया कि दवा देते देते उनको मालूम होता था कि फलाना आदमी कुछ न कुछ पीड़ा है और हम्म। बरस 2 बरस बीमार है। तो हम्म। दवा तो, लेकिन उसको साथ साथ संगीत की ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं क्या। हम्म। अच्छा संगीत अगर उसको सुनाइए तो दवा के साथ उसका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हम्म। उसके वास्ते उन्होंने क्या किया, ये लाजाड़ू करके वनस्पति है, टच मी नॉट, हम्म। जिसके पास हम अपनी उंगली ले लेंगे तो पन्ना मिट जाता है। हम्म। तो उसके 10 पौधे लिए, हम्म। वो 10 पॉट में लगा दिए, हम्म। और 9 पॉट को उन्होंने भैरवी राग अलग अलग गायक लोगों का सुनाया, हम्म। जिसमें अब्दुल करीम का साहब थे, हीराबाई बड़ौदेकर थे, ओंकार नाथ थे, हम्म। और काफी लोग थे। उस वक्त की रिकॉर्ड होती थी 3 मिनट की। हम्म। तो एक कमरे में लाने का,
वो फोनोग्राम से रिकॉर्ड बजाने का, सुनाने का, दरवाजा बंद करके फिर बाहर लेने का, दूसरी पॉट लाने का, और 9 पॉट को गाना सुनाए, एक पॉट को गाना नहीं सुनाया, हम्म कंट्रोल करके रखा था। हम्म हाँ, वो कंट्रोल करके रखा था। हम्म और अ, वो सब पॉट को अच्छा धूप मिलेगा, हम्म पानी मेजरिंग ग्लास से डाला। हम्म प्रयोग शुरू करने के पहले उनकी ऊंचाई गिनी, हम्म उनको कितने पन्ने हैं वो गिने, हम्म उनके स्टेम में कितना ताकत है, कितना वजन डालने के बाद वो बेंड हो जाता है, जिसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं इंजीनियरिंग में। हम्म तो वो सब देख लिख के रखा। हम्म और 1 महीने के बाद जब भी प्रयोग बंद किया, तभी वापस गिनती कर दी, हम्म और उससे कैलकुलेशन करके बताया कि अब्दुल करीम खान साहब का गाना जिसको सुनाया, उसकी ग्रोथ 297% हो गई। ओ और उस वक्त पूना म्यूनिसिपालिटी डीडीटी का फवारा लगाती थी मच्छरों के वास्ते। हम्म वो आके चला गया था, मच्छरों का फवारा लग गया। तो जो कंट्रोल का पौधा था, वो पौधे का जो मूली था, हम्म वो खराब हुआ था। हम्म और ये बाकी जिसको गाना सुने उधर ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो अच्छे बढ़ रहे थे। हम्म और फिर ये प्रयोग उन्होंने पूना के वैद, म्यूजिकोलॉजिस्ट, हम्म म्यूजिशियंस और बॉटनी प्रोफेसर हम्म 50 लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने ये रीडिंग्स रख दिए और हम्म उनको बताया। फिर उस वक्त पूना यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, वो डॉक्टर एम आर जयकर करके थे। हम्म ये जयकर आपको याद होगा, 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इंग्लैंड में, हम्म महात्मा गांधी के साथ जयकर, सप्रू और महात्मा गांधी, ये 3 लोग थे। वो जयकर है। तो वो जयकर, जिस हम्म संगीत का कान अच्छा था, हम्म वो वाइस चांसलर थे। हम्म उनको जब ये प्रयोग मेरे पिताजी ने बना बताया, तो बोले हम लोग विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में ये प्रयोग करेंगे हम्म और इसको बढ़ावा दे देंगे। लेकिन बात ये हो गई कि 1956 में ये प्रयोग हुआ, 1954 में, हम्म 6 में मेरे पिताजी गुजर गए, उनका आयु था खाली 54। ओ और जयकर 57 में गुजर गए। ओ प्रयोग आगे हुआ नहीं, हम्म बल्कि मुंबई के एक कॉलेज के बॉटनी प्रोफेसर मेरे पीछे थे। हम्म ठीक है, आप बढ़ा दो ना आगे। हम्म तो ये एक उनका देखने का, जो मैं विज्ञान की तरफ कहाँ से कैसा गया, हम्म इसका रूट इधर है। हम्म तो 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 मैं आयुर्वेद आगे क्यों नहीं गया, इसके बारे में बताता था। मुझे मेरे पिताजी के जो बाकी लोग थे, वैद्य लोग, हम्म काफी मालूम है। गणेश शास्त्री जोशी करके पूना में थे, वैद्य पंचानंद कवड़े शास्त्री थे, वैद्य हिरलेकर थे। तो काफी लोग थे। ये गणेश शास्त्री जोशी की बात बता दूं, आई थिंक 1940 या 45 में हम्म महात्मा गांधी का कोई ऑपरेशन पुणे के ससून हॉस्पिटल में होने वाला था। हम्म तो 2 श्योरिटीज की सिग्नेचर चाहिए थी, हम्म तो उन्होंने गणेश शास्त्री जोशी का नाम बताया था। हम्म तो ऐसे ये बड़े ऊंचे लेवल के वही लोग थे। हम्म सबका यही तरीका है, जो अपना ज्ञान है वो अपने पास रखने का, और को देना नहीं। हम्म इसके वास्ते आयुर्वेद आगे नहीं गए। आज एलोपैथी में क्या होता है, जो सब लिखित रहता है, हम्म उनके मैगजीन्स रहते हैं, उसमें केस स्टडीज आते हैं, वो हम्म बाकी लोग पढ़ते हैं, उससे सीखते हैं। हम्म तो ऐसा नहीं हुआ, इसके वास्ते आयुर्वेद पीछे है हमारे। ओ अब समझा। लेकिन बहुत दुखद की बात है, क्योंकि वो लोग चमत्कार करते थे। हाँ हाँ हाँ। हम भाई चाय पी सकता हूँ या अच्छा नहीं दिखेगा? अब चाय पी के बात कीजिए, उसमें क्या है। अगर थोड़ा भेज सके तो इंटरनेट से इधर भी भेजिए थोड़ा। आपको मैं दे सकता नहीं हूँ, ये अफसोस की बात है। अभी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है। ये ऐसे हो जाएगा शायद। हम साइंस फिक्शन में लिखते हैं ना, इधर हाँ, रखते ही ट्रांसपोर्ट टेलीपोर्टेशन उधर हो जाता।
बराबर है। हम्म। फिर आप नहीं आपके नहीं, पढ़ाई ये चलता रहेगा। हाँ, अभी आप आप आगे आगे। आप आपके पढ़ाई के बारे में बताइए हाँ, अब। अभी पढ़ाई के बारे में हम्म। क्या हुआ। मेरे पिताजी 1956 में गुजर गए, जब भी मैं 8वीं कक्षा में था। हम्म। और मेरे 5 भाई, मैं छठवा, और 2 बहनें। हम्म। एक ही बहन का शादी हुआ था, हम्म। बाकी नहीं था। तो मेरे सबसे बड़े भाई उस वक्त पूना के गरवारे कॉलेज में हम्म। ट्यूटर थे मैथमेटिक्स में। हम्म। बाद में वो एक बरस के बाद मुंबई मुंबई के विजेटिया में गए, हम्म। असिस्टेंट लेक्चरर करके। हम्म। तो ये सब पूरा कारोबार उन्होंने अपने तनख्वाह से पूरा किया। हम हम्म। सब लोगों को पढ़ाया, हम्म। शादी करवाया। हम्म। तो इसका मतलब ये था कि जल्दी सीख के कमाना शुरू करो। हम्म। तो मुझे उस वक्त 69% मार्क्स थे एसएससी में। हम्म। मैथमेटिक्स में 96 आउट ऑफ 100। हम्म। उस फिर जमाने में। हाँ, उस वक्त हम्म। 59 में मैं एसएससी हो गया। हम्म। तो पूना के वाडिया कॉलेज का एक हिस्सा टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, कसरो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म। उधर मैं डिप्लोमा करने को गया, जो 3 वर्ष का होता था। फिर भी उसकी जो फीस थी, हम्म। 150 रुपया फीस थी पूरे बरस की। हम्म। पैसा नहीं था। तो मैंने लोन स्कॉलरशिप के वास्ते अप्लाई किया। पहला एक गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता था, हम्म। 35 रुपीज पर मंथ। हम्म। लेकिन क्या हो गया, एक नासिक के पास का मोफिसिल प्लेस का कोई एक भिड़े करके बच्चा आ गया। हम्म। वो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप में कंडीशन था, जो मोफिसिल है उसको प्रेफरेंस दो। हम्म। नंबर होते हुए उसको मिला। हम्म। फिर मैंने अप्लाई किया एक गनपुले ट्रस्ट करके, गुजरात में, जो ये अपना संडास का बर्तन बनाता है, या और कुछ पोर्सिलीन के, वो हम्म। इंडस्ट्री था। तो उनका लोन स्कॉलरशिप था। वो लोन स्कॉलरशिप उतना ही था, 35 रुपीज पर मंथ। तो वो लोन स्कॉलरशिप मैंने लिया, और उससे मेरी पूरी पढ़ाई 3 बरस के हो गए। वो हम्म। बाद में मैंने नौकरी शुरू किया तो पैसा वापस किया। तो हम्म। मैं इस वाडिया कॉलेज में, बल्कि हमारे प्रिंसिपल थे देशपांडे, यू आर द हाईएस्ट मार्क स्टूडेंट। हम्म। 9% से ज्यादा मार्क वाला कोई बच्चा नहीं था। हम्म। 3 बरस मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। हम्म। उस वक्त स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था मैं, इंटर डिप्लोमा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। हम्म। वहाँ भी ड्रामा में मैंने हिस्सा लिया था। हम्म। प्रोफेसर लोगों के साथ अच्छा कारोबार था, मजाक करने वाला भी था। हम्म। एक बार मैंने अपने प्रिंसिपल साहब जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते थे, हम्म। तो उनको पूछा था कि आप एक कोई ऐसा लंबा वाला बार ले लेंगे और उसको मैग्नेटाइज करेंगे, तो आप बताते कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। हम्म। लेकिन एक रिंग रहेगा, हम्म। उसमें साउथ पोल, उसको मैग्नेटाइज किया तो उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल कहाँ रहेगा। ये हम्म। जानबूझ के मैंने पूछा था। हम्म। तो वो प्रोफेसर ने नीचे झुक के एक चौक से सर्कल निकाला, हम्म। और बोला, देशपांडे, इसमें नॉर्थ साउथ पोल नहीं रहेगा, ये आप काटो, हम्म। एक जगह बना दो, फिर हम्म। नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा 3 बरस हुआ। लेकिन क्या हुआ, मुझे फर्स्ट क्लास नहीं मिला। हम्म। इंजीनियरिंग डिप्लोमा में मुझे 59% मार्क्स मिला। हम्म। और जो बच्चा 3 साल पास होता रहेगा हम्म। और फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास मिलेगा, तो उसको डिग्री के सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती थी। ओ। डिग्री भी 3 बरस का था, हम्म। तो सेकंड ईयर में मिलता था एडमिशन। जैसा कि ये मेरे डिप्लोमा के 3 और डिग्री के 2, 5 साल भी मिलने को। और आप इंटर साइंस करके डिग्री में जाएंगे तो इंटर साइंस का 2 बरस और डिग्री के 3, 5 6 बरस पीरियड वही था। लेकिन मुझे मिल नहीं सका। हम्म। और उसी वक्त हमारे कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग चालू हो गया। हम्म। तो मैंने 1 बरस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया। तो डी और डीएमए, ये दोनों मैंने किया। और
मैकेनिकल में फर्स्ट क्लास मिला मुझे। हम्म, वो अगर इलेक्ट्रिकल में होता था तो मैं डिग्री होल्डर हो जाता था। हम्म, ठीक है, लेकिन जैसा ही मेरी डीएमई के एग्जामिनेशन हो गए, हम्म, उस वक्त हमारे वाइस प्रिंसिपल एक प्रोफेसर G.R. कुलकर्णी करके थे, हम्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखाते थे। हम्म, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला, देशपांडे, इस कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर करके तुम आएंगे, हम्म, कोई जॉब देता है तो क्यों ना बोलने का। हम बोला हाँ जरूर आएंगे। हम्म, उन्होंने मुझ में क्या देखा मालूम नहीं, पढ़ाने का स्किल कोई देखा, मेरे बात करने का ढंग देखा, समझाने का कुछ बात होगा, मालूम नहीं क्या क्राइटेरिया था, लेकिन उन्होंने ऑफर दिया। मैं हाँ बोला उनको। हम्म, फिर क्या हो गया, 2-3 दिनों के बाद मैं पुणे के सब्जी मंडी में घूम रहा था, हम्म, शाक भाजी खरीदने के वास्ते। तो हमारे कॉलेज में एक ट्यूटर इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी में उडगीकर करके थे, हम्म, तो वो मुझे मिले। और उडगीकर ने मुझे पूछा कि देशपांडे क्या कर रहे हो। हम बोला रिजल्ट का इंतजार है, अभी जून में रिजल्ट लगेगा तभी किधर न किधर नौकरी ढूंढेंगे। बोले हम कॉलेज छोड़ के पूना नगर रोड पे एक वैनले साइड नेशनल कंडक्टर्स करके इंडस्ट्री है, हम्म, जो कॉपर वायर्स ट्रांसफार्मर के वास्ते बनाते हैं, हम्म, तो देखने को आ जाओ ना। हम्म, तो दूसरे दिन मैं साइकिल के ऊपर 6 किलोमीटर, गर्मी के दिनों में पुणे के, गया उधर हम्म, इंडस्ट्री में गया और अंदर मैसेज भेजा कि मैं आया हूँ, हम्म, क्या मुझे आपकी इंडस्ट्री। तो उन्होंने क्या किया, मेरा इंटरव्यू शुरू किया। हम्म, एक मचाडो करके मेंटेनेंस ऑफिसर था, सुपरिंटेंडेंट, उनके पास गया। एक गुप्ता करके प्रोडक्शन इंजीनियर था, उनके पास गया। ऐसा 4-5 लोगों के पास इंटरव्यू किया। 12-1 बज गया, बोला इधर खाना खा सकता है, हमारा कैंटीन। इंटरेस्टिंगली मेरा बड़ा भाई बीएमएस डॉक्टर हुआ था, उन्होंने फोन लिया था, और हम्म, पिताजी का दवाखाना वो चलाता था। तो घर में फोन करके मैं बोला कि मैं फलाने जगह हूँ, खाना खाने को नहीं आ सकता हूँ, 5 बजे तक आऊंगा, चिंता मत करो। तो 4 बजे मेरा फाइनल, गेडिस करके ब्रिटिश वर्क्स मैनेजर था, हम्म, और बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजिंग डायरेक्टर था, गुजराती था। तो फाइनल इंटरव्यू में वो बोला, वी आर इन ए पोजीशन टू टेक यू ऑन द जॉब, हम्म, व्हेन कैन यू ज्वाइन। आई सेड गिव मी 2 days। I said, how much salary you are going to pay? They said 1 year apprenticeship, you will be paid 150 rupees. हम्म, I said, all right. Next day I went to college. हम्म, I did not meet Vice Principal G.R. Kulkarni. I went straightway to Principal हम्म, R.D. Joshi. He was उत्तर प्रदेशी आदमी, और बोलते थे कि वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जमाई है। मालूम नहीं सच्चा झूठा क्या था। हम्म, वो दिल से बड़े अच्छे थे, और G.R. कुलकर्णी एकदम स्ट्रिक्ट आदमी था। हम्म, कॉलेज में ऐसे, हर एक संस्था में ऐसा होता है, नंबर 1 नंबर 2 में। तो R.D. जोशी साहब को जो ना बोलने का, वो बोलते थे कुलकर्णी साहब को जाके मिलो। तो हम्म, मैं गया और जोशी साहब को बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मुझे कुलकर्णी साहब ने असिस्टेंट लेक्चरशिप ऑफर किया है, और कल मैं गया था, उडगीकर साहब ने मुझे बुलाया, वो इंडस्ट्री में मुझे पोजीशन दे रहे हैं, हम्म, मैं क्या करूँ, आप सलाह दे दीजिए। तो बोले, देशपांडे, you go to industry, you will shine there. हम्म, I said, what do I do with Professor Kulkarni? He said that you leave it to me. I will tell you. So then from June, I went to Wanley Side National Conductors. There were no buses on that road that time. हम्म, I used to go on cycle. गर्मी के दिनों में second, first shift, second shift, third shift, all 3 shifts were there. So गर्मी के दिनों में second shift के वास्ते, सर्दी के दिनों में नाइट शिफ्ट में हाथ ठंडे हो जाते थे। हम्म, तो ये चालू था। उसके पहले की एक बात बता रहे, तो उस वक्त पूना में ट्रैफिक बहुत कम था। हम्म,
महंगा था, ऑटो रिक्शा नहीं थी, बसेस भी बहुत थोड़ी थी, हम्म तो रास्ते में भीड़ नहीं होती थी। और मैं A1 साइज का बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड, हम्म वो 1.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, हम्म वो एक हाथ में ऐसा पकड़ के और दूसरे हाथ से हैंडल साइकिल का पकड़ के घर से कॉलेज तक 4 मील मैं हम्म जाता था। हम्म ये बाद में इंडस्ट्री में मैंने जाना चालू किया। तो फिर एक दिन मैंने इंडस्ट्री में 4-5 महीना होने के बाद, उस वक्त जो डिग्री होल्डर अप्रेंटिस थे, हम्म उनको 200 रुपये मिलता था माहवार, और हम्म हमें 150 मिलता था। ऐसे 2-3 डिप्लोमा होल्डर थे, 2-3 डिग्री होल्डर थे। तो मैंने मैनेजमेंट को एक लेटर लिखा, सिंस आई हैव डबल डिप्लोमा कैन यू इक्वेट मी विद डिग्री होल्डर। हम्म तो 15 दिन के बाद उनका एक क्लार्क आके मेरे हाथ में एक लेटर सौंप गया। मैं खोल के देखा, बोला फ्रॉम दिस मंथ यू आर बीइंग पेड 200 रुपीज स्टाइपेंड। ah आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज इक्वेटेड विद डिग्री। ठीक बाद में मैंने बाकी जो 2-3 डिप्लोमा होल्डर थे उनको पूछा, बोला हमें भी ऐसा ही लेटर आया। है। सब डिप्लोमा होल्डर का 200 किया और डिग्री होल्डर का 250 किया उन्होंने। हम्म बट आई एंजॉयड दैट जॉब। एंड बात ऐसी हो गई, करीबन नवंबर 1964, 1964, हम्म टाइम्स ऑफ इंडिया में एसो का एक एडवर्टीजमेंट आया था, जो आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, हम्म उसका पूर्वावतार एसो। हम्म उसके पहले वो स्टैनवैक करके कंपनी थी। तो हम्म स्टैनवैक की एसो हो गई, एसो नेशनलाइज हुआ जब ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हम्म तो एसो के एडवर्टीजमेंट थे और उनको कुछ ट्रेनीज लेने थे, तो उसके वास्ते मुंबई में आके कोई इंटरव्यू देना था। तो मेरी नाइट शिफ्ट थी, हम्म दिन में हो जाएगा, शाम को ट्रेन से मैं वापिस आऊंगा, रात में शिफ्ट में चला जाऊंगा। तो उधर गया, इंटरव्यू हो गया, हम्म इंटरव्यू ठीक हो गया। तो केम्स कॉर्नर मुंबई में उन्होंने बताया फलाना फलाना डॉक्टर है, हम्म उसके पास जाके मेडिकल चेकअप करो। और हम्म वो शाम के 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी। इसका मतलब मैं रात पूना में ऑफिस नहीं आ सका। हम्म रात में उधर ठहरा, दूसरे दिन सुबह गया, दूसरे दिन नाइट शिफ्ट को WNC में चला गया मैं। तो इंडस्ट्री के दोनों मेन गेट बंद थे हम्म और बोर्ड लगाया था, स्ट्राइक चालू हो गया उस दिन सुबह से। ओ और लिखा था फॉलोइंग स्टूडेंट पीपल एम्प्लॉइज हम्म not reported on duty, so we presume that they are in the striking group, so why we should not take any action against them। हम्म शो कॉज नोटिस था। हम्म तो फिर एंड दे शुड रिपोर्ट टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock टू द ऑफिस। तो हमें जो इंटरव्यू का कॉल आया था, वो लेटर लेके मैं दूसरे दिन सुबह चला गया और बोला फलाना फलाना बात था, मैं स्ट्राइक में नहीं था, ये लेटर देखो। इंटरव्यू के वास्ते मुंबई बुलाया था, मैं उधर गया था और वापिस आ रहा था, कल नहीं आ सका, उसके वास्ते मैं ड्यूटी में नहीं था। वो मान लिया उन्होंने। हम्म क्या हो गया, जब तक जॉब नहीं मिलता था मुझे अनाउंस नहीं करना था, लेकिन ये सब जगह फैल गया, ये छोड़ रहे हैं अभी करके। हम्म Then I got that job, and then around 24th of December 1964, I migrated to Mumbai. जो 64 to now 2025, last 61 years, हम्म I'm in Mumbai. ओ And earlier 22 years I was in Pune. हम्म My brother who came to visit here in Mumbai as assistant lecturer in mathematics हम्म was staying in Chembur. हम्म So I stayed with him. Then he migrated to Goregaon, a suburb. I went there. Then what happened? Uh, job lasted for 8 months only. हम्म
January 1, 65 to 31st August 65. Hmm. अगस्त में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जगह जगह पे शुरू हो गया। तो Hmm. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर सब लोगों को भेजा गया, ऑल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, Hmm. that henceforth you will not purchase your petroleum requirement from ESO or Burma Shell. Hmm. If you do so, your bills will not get sanctioned. Hmm. Purchase them from Indian Oil Corporation. अच्छा, इसका असर ये दोनों इंडस्ट्री में हुआ, तो अभी उनको खर्चा में कटौती करनी थी। Hmm. तो उन्होंने क्या किया, लास्ट केम फर्स्ट आउट Oh. Hmm. इम्पीचमेंट चालू किया। Hmm. तो उसमें जनवरी में हम लोग 24 लोग भर्ती हुए थे। Hmm. कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली एंड मुंबई, दीज वेर देयर 4 प्रोविंसेस। तो Hmm. हर एक जगह 6 करके 24, और बम्बई में एक ज्यादा 25 आदमी लोग रिक्रूट किए थे, ऑल 25 आउट। Hmm. लेकिन सुबह मेरा सुपरवाइजर देसाई करके आया, देशपांडे, दिस इज योर लव लेटर। Hmm. आई ओपनड इट, आई सेड यू हैव थ्रोन मी आउट। बोला व्हाट कंपनी सेज। फिर उन्होंने मुझे उस दिन खाना खिलाया, लास्ट डे करके। पर जो कूपन मैं देता था, उन्होंने मेरा कूपन दिया, कैंटीन में खाना खाया। Hmm. और फिर उन्होंने मुझे एक तम्बाकू का पान दिया। Hmm. ये आदत नहीं थी तम्बाकू खाने की, वो मैंने खाया, एंड देन आई वोमिटेड। Hmm. Fortunately, there was a washroom close by, so I did not vomit outside in public. Hmm. Anyway, so, and then for next 3 months, I was jobless. Jobless. Hmm. But then what happened? My uncle, he was chartered accountant and partner of Bartleby and Purohit Company. Hmm. This was number 2 organization in Mumbai. First, then was Ferguson and Company. Hmm. Second one was Bartleby and Purohit. And my uncle himself was also a musicologist and musician. Hmm. So when he came here for interview of his, so I visited him and I said, I come here for so and so. He said, how much salary they are going to pay? I said, they are going to pay me 630 rupees. I was getting, no, 1 year completed in WNC, so I was getting 350 rupees per month. But then from 350 to 630, that was the jump. He said, unbelievable. Hmm. I said, this is what their letter is. So he's one of the friends, but who was interested in music. He was working in ESO. So he telephoned him. He said, my nephew has come over here and he is being offered a job in your organization. And he says, you will get salary of 630 rupees. Is it true? He said, give me 10 minutes. I'll find out from HRD. So he inquired and then he telephoned him back. He said, yes. What he says is correct. He will be getting 630 rupees. Then my uncle said that compared to today's scale, this is a very good salary. Hmm. But then don't think that this is on your own deed. Hmm. Your entire family has developed it. So whenever in your family, your brother, your sister are in need of money, without they asking you, you should help them. Hmm. And this is the mantra he gave me, which lasted even today. I have helped many people, did not keep any expectation of getting money back. If I get it back, good. If not, no mention. But then keep on helping people. Hmm. So that is what the mantra my uncle gave. So when I became jobless, again I went to him. I said, so and so thing has happened. He said, don't hide it. Tell as many people that you are jobless. Then they will. Hmm. So he immediately telephoned to Gruge and Cotton Company. There was one more friend of him, Hmm. and told him that my nephew is in need of a job. He said, okay, I will look into it if it is so. But that gave me so much courage that from there, his house was opposite Handloom House in Fort area. So from there, I went to VT station. Hmm. Opposite VT station, there is Times of India's office.
So I went to Times of India's office and I said, I want to advertise myself in situation wanted column. He said, do you have a job? I said, no, I am jobless. Then he said, pay 6 rupees 50 paise there and 3 times insertion will come in Times of India every week once. And whatever responses will come, we'll put in one envelope and post it to your house. And I got 4 responses from that. They offered me job. So I accepted one Oriental can manufacturing company. I think one Marwadi concern. I'll tell you the name of it. 550 rupees salary. So from 630, I came down to 500 rupees. But then okay, I accepted that. That was at Varli Naka. Before that, I think after that 3-4 months, I purchased one scooter, Vespa. So from Goregaon, I used to go to Varli Naka on scooter. In Mumbai, that time could be about 25-30 scooters. So it became a exhibition. People used to see what is this vehicle. So I used to go. I worked there for 2 years. Good experience I gained. Once it so happened that in the workshop, what they used to do, they used to take the tin sheets, cut them to the size, and make the dabbas for various purpose, for paint, for oil, for wood polish, for whatever it is. They used to print also those tin sheets and form them into the dabba, test them, joint is soldered, and then so that it's not leaking, they used to test it also. So I work on the production floor for that. In that hall, there were photo frames of Hanuman and Ambedkar. And every Friday they used to pray, Ambedkar, make aarti, all of them gather there, Saturday Hanuman. So I advised my manager, when Moti Singh Agarwal was there, Marwadi manager, that this is not good in the industry. Religion is at home. So he liked that idea. And one Sunday, he called the carpenter of the same industry and asked him to remove. Monday morning, I came, everyone on strike. They said, you have removed this. This is not good. You should fix it up again. And then the owner used to telephone every half an hour. What happens? Strike is called off. Until evening, it continued, 6 o'clock. Ultimately, the management bowed down. The frames were put. Manager put the garland, made aarti. And then I put everyone on the job. And night 10 o'clock, I returned back home. So that time I learned that such things will happen in the industry. You can't object because these are the fates of people. And we can't help to that. So this is what the lesson I learned. But funny enough, management did not blame me at all for this advice because advice was implemented by manager. But one thing that at the end of first year, company earned good money. So they said we are in profit and we want to increase the salary of the people. Advise us what to do. So handmade closures of the dabba and all that. So they used to get 12 annas a day. So I said increase 4 annas and make a full rupee. They did that. And then those workers were so happy with that increase. So 33% increase, 12 annas to 1 rupee, 16 annas. So the day I resigned from there after 2 years, all the sub departments, about 6-7, they garlanded me and gave me some presentation articles. Not that at the security gate where I used to park my scooter, I was about to kick the scooter. Those security people came with the garland and they also put me garland. So at my brother's house on the walls of 4 walls, I put all those garland.
So then what happened that 1965 1st January to 1966 December, almost 24 months, 23 months, I worked there in Oriental Can Manufacturing Company. And in October or so, I went to Aso friend. I went to his house in Chembur. He said, Deshpande, one petrochemical industry has just started on Thane Belapur Road. Its name is NOSI, National Organic Chemical Industries Limited. And my brother-in-law is a security officer there. So why don't you apply there? You have worked in ASO already. You have some oil experience. Give me that application. So I wrote the application there itself, handed it over. He passed it on to that security officer, Mr. Sathe. And after 15 days, I got a call for the interview. So I went, I gave the interview, and they offered me a job, 690 rupees. This 500 became 550. So from 550 to 690. That is what NOSIL offered me. So I said, you give me 1000 rupees. So there was one personal officer, JVMP Kutz. So he said, Areva, so every 2 years you want to double your salary? I said, so what? If you can afford, you give me. This is what I want. But then they were telephoning me every time because July to November, 4 months passed away in between. I said, I need time to think over. So from NOSIL's office, that personal department's one girl, she used to telephone. And then in Oriental Can, people used to say, your fiancé is telephoning you. I said, I am not married. I don't have any fiancé and all that. But then it so happened. And then on 1st December 1960, 65, I was in it. So 66, 67. 1st December 67, I joined NOSIL. And that job continued until 31st of August 1997. 30 years I worked in NOSIL. But when did you start writing? I started writing while in Pune job only. Pune job only. I wrote one article, some competition was there for Pune Sakal. I wrote in Mumbai also. My uncle was felicitated in the Savai Gandharva also. So that I published it in Acharya Atre's newspaper Maratha. So likewise, it started sporadically. But then while in NOSIL, all these things, they took lead in all the activities. Whereas as long as I was in Oriental Can Manufacturing Company at Worli, from my factory, 10 minutes walk, Acharya Atre's house and press was there, Shiva Shakti at Worli Naka. You stay, you know Mumbai somewhat? Yes. So at Worli Naka, there is a full height statue of Acharya Atre. That lane, his Shiva Shakti office was there. So in his office, there used to be some programs. So one day he wrote one drama, Bua Tethe Baya. And he said, I will read one, some part of it. And he invited people publicly, and round table, four people were sitting on table around that, some eatable, some coffee, and he was reading that. And after finishing that reading, people were in the queue to meet him, greet him, and all that. So I was also in the queue. So I said, looks very good, attractive. बघाल मंचावर किती त्याला मजा येईल ते. This is what Atre said. You have to translate it. So Acharya Atre, I heard many lectures in Pune, in Mumbai, a dramatist, and you can say octagonal personality. What he was not. He was the best teacher. He was the best textbook writer. He was the best drama writer. He was the best cinema writer. His first movie, Shamchi Ai, written by Sani Guruji, won the first Ashtrapati Award
in 1952. Mm. He was the journalist. He started his own newspapers, weekly and then daily also. Mm. So many activities he used to do. What were his basic qualification? BA, BT, TD, London. He did teacher's diploma in London. So I heard him many times. And as I said that I had the hobby of listening the lectures. So Mm. they continued in Mumbai also after Pune. So then I started working in NOSIL. So I think we'll stop here, and NOSIL chapter is a big chapter. And also, when Ah. we were to discuss about simultaneously about your writings too, what you have Okay, written, stories, essays, articles. we'll do that. We'll do that. So, And now you see one weekly serial is going on Mumbai Doordarshan, mm, Science, Vijnanam Janahitaya. mm, So I am responsible for that. So tomorrow, day after, and third day, 18th, 19th, 20th June, we are going to have the recording of 11 programs. So I will be busy full time on Doordarshan. okay. So Ah. we'll meet after that to discuss about your next part of your life. We'll meet next Tuesday at this time only. Okay. Okay, Next Tuesday. next Tuesday. Okay. Ah. So So with the same link or new link that you send it to me, like today, and next Tuesday 3 o'clock we'll meet. so for today we Ah. will have a small gap. So Yes, this yes. is for the part one of conversation. Part 1.5 hours we spoke. Part one conversation with Anant Pandurang Deshpandeji. We I- enjoyed it. If you really enjoyed it and liked it, please subscribe to this channel, like the channel, and please comment there about Okay. this program. So we will meet again next Send week. me address of your channel so that I will view it. Okay. And so हाँ, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप समय निकाल के हमसे बात किए. सो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. सो okay. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. थैंक यू वेरी मच. Thank you.